Hello dear students, welcome back to the Crystal International Public School Standard 8 Subject Science Chapter 6 Combustion and Flame. We have seen in last two videos about combustion, what is combustion or combustion also, and about also flame. Okay, combustion में हमने देखा क्या देखा. Let's revise it first fast. That combustion means what? कि जो एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें फ्लेम मिलता है, कैचेस फायर, इट कैचेस द फायर, दैट इज कॉल्ड combustion. ओके, एंड such substances, combustible substances like fuel. फ्यूल में क्या होता है, कैरोसिन जो हम ले लेते हैं, पेट्रोल्स ले लेते हैं, दैट इज एलपीजी गैस ले लेते हैं, देन सीएनजी ले लेते हैं, तो उसको क्या होता है, थोड़ी बहुत चिमकी देनी पड़ती है एंड देन इट आफ्टर इट मे बी ब्लास्ट. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर. तो हमने इग्निशन टेम्परेचर भी देखा था कि व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर. ओके, कैरोसिन को फायर करने के लिए थोड़ा बहुत चिमकी चाहिए, so its ignition temperature is lower than wood, because wood को क्या चाहिए, its ignition temperature is higher than kerosene and petrol. Okay, so such type of substances we have seen in our last video, last session, and then after also we have done this activity. Okay, and also we have seen that how do we control the fire, now we will go through our next topic, that is types of combustion. Types of combustion is what? Let's start about it. Types of combustion. Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. Why or what do you observe? Do not handle the gas stove yourself. Ask your parents to help. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा, आप ये एक्टिविटी तो आप लोगों ने देखी होगी घर पे, कि सपोज लाइटर है, जब वर्क नहीं करता तो हम मैचस्टिक से जो गैस स्टोव है वो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो वो सडनली स्टार्ट कैसे होता है? सो वी फाइंड दैट the gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. तो हम जैसे ही नोब स्टार्ट करेंगे गैस स्टोव का, एंड देन आफ्टर लाइटर से हम उसको थोड़ा बहुत चिमकी देंगे या फिर मैचस्टिक से, देन इट विल गिव यू द लाइट एंड हीट सडनली. ओके, रैपिडली. So that is called rapid combustion. Next is spontaneous combustion. Spontaneous combustion क्या है? There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. That is called rapid combustion. उसका example है phosphorus. Now the type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. Spontaneous means what? कि वो अपने आप से ही फ्लेम शुरू हो जाएगा करने को. ओके, हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे तो उस अपने आप ही वो स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल गिव यू द फ्लेम. ओके, तो ऐसे कुछ ये मटीरियल्स है यहाँ पे that gives you the spontaneous combustion. Spontaneous forest, देखो, fires are sometimes due to the heat of the sun or due to the lightning strike. Most forest fires are due to the carelessness of human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. देखो, फॉरेस्ट में क्या होता है कि सनलाइट की वजह से भी स्पॉन्टेनियस
आ जाता है ना, सडनली आ जाती है फायर, स्पॉन्टेनियसली फायर कंबस्टन हो जाता है, क्योंकि सनलाइट की वजह से भी होता है, या फिर हम ये वो भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत चिमकी उसको मिला तो भी हो जाता है। ओके, सो दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। We generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat. क्रैकर्स जो आप यूज़ करते हो दिवाली पे, तो वो जो क्रैकर्स है उसको आप थोड़ा बहुत ही चिमकी देते हैं और सडनली आपको क्या मिल जाता है, ब्लास्ट। सो लाइट एंड साउंड ऑल्सो, हीट, लाइट एंड साउंड, 3 are there. So a large amount of gas formed in the reaction is liberated, and then after light, heat and sound तो मिलता है कि साथ में धुआं भी मिलता है। Large amount of gas. So such a reaction is called explosion. Explosion can take place if pressure is applied on the crackers. क्रैकर्स में जो प्रेशर अप्लाइड हुआ तो वहाँ पे एक्सप्लोजन क्रिएट होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम। फ्लेम क्या है? ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? कैंडल फ्लेम का कलर क्या होता है? रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबिन। मैग्नीशियम रिबिन में क्या होता था कि वो वाइट कलर की फ्लेम आपको मिलती थी। इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स, देन यू कैन डू दैट नाउ। एंड इनटू दिस मटेरियल इट इज़ गिवन, दैट इज कैंडल को ब्लो करना, मैग्नीशियम को ब्लो करना, कम्फूर को, केरोसिन स्टोव को एंड चारकोल को। तो आपको कैसी फ्लेम मिलेगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। कलर्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ अ किचन स्टोव, इट इज गिवन। से ये जो है आपको पेल येलो टाइप मिली, बट ये जो है आपको ब्लू कलर टाइप मिली। वाई? डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम्स मिलते हैं ना। Flames into the kerosene oil, that is kerosene lamp, flame into the candle and Bunsen burner. Bunsen burner में आपको ब्लू कलर की मिली, इसमें आपको थोड़ा बहुत येलो कलर जैसी है और यहाँ पे ऑरेंज कलर जैसी है, देखो। So record your observations and mention whether in burning the material forms a flame or not. Okay, now हमें देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम कैसा है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम? उसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ्लेम्स आती है। सपोज मैं कैंडल ब्लो करूँ और कैंडल ब्लो करके मैं एक बर्तन जो ले लूँ, वेसल ले लूँ, सपोज मैं स्पून ले लेती हूँ, चलो स्टील स्पून ले लेती हूँ, और स्टील स्पून को मैं उसके आसपास में जाने दूंगी और फ्लेम के ऊपर ही रखूँगी, तो आपको क्या मिलेगा? धुआं धुआं मिलेगा और स्टील जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सपोज मैं घी का लैंप करती हूँ, घी का दीप करती हूँ, घी का दीप। ओके, तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी आपको ऐसी ऐसी फ्लेम मिलेगी ब्लैक कलर की। ओके, बट गैस स्टव जो है वो गैस स्टव में आपको कभी ब्लैक होता हुआ देखा है आपने? वो कब देखा होगा? जब गैस जो ख़त्म होने वाला हो गैस बॉटल में, तब आपको ऐसा बहुत दिखाई देगा, ब्लैक ब्लैक बर्तन ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। लेकिन रेगुलर जो है वो बर्तन एज इट इज़ रहते हैं, वो फ्लेम से हमारे बर्तन जो है वो ब्लैक नहीं होते। ओके, तो वो फ्लेम भी डिफरेंट है। So let's start the structure of a flame. Light a candle. Be careful.
Hold a 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end of in the dark zone of a non-flickering candle flame. आपको ऐसे रखनी है, यहाँ पे रखिए ना, कैन यू सी ओवर हियर? So structure of a flame. नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम मीन्स, नॉन फ्लिकरिंग मीन्स वो डिस्टर्ब ना हो, फ्लेम कैंडल फ्लेम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ऐसे ही आपको टेस्ट ट्यूब को वहाँ पे होल्ड रखना है, होल्डिंग करना है, ठीक है? ओके, ब्रिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द glass tube. Do you see a flame caught at this end of the glass tube after a while? If so, what is it that produces a flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly. वहाँ पे wax क्या है, quickly melt हो जाएगी. Okay? So the substances which vaporize during burning give flames. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. यहाँ पे केरोसिन एंड वैक्स क्या करते हैं, मोल्टन वैक्स क्या करते हैं कि जैसे ही हम उसको फ्लेम देंगे तो वो बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, एंड फ्लेम्स देना स्टार्ट हो जाएगा. इट मीन्स केरोसिन वेसल जो है उसमें हम फ्लेम करेंगे तो भी हमें फ्लेम्स मिलेगी, एंड यहाँ पे भी हमें कैंडल में भी फ्लेम्स मिलेगी, ओके. So, but about charcoal what? So charcoal on the other hand does not vaporize and so does not produce a flame. Charcoal यहाँ पे flame produce नहीं करेंगे. तो activity 6.5, could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? यहाँ पे जो ग्लास ट्यूब में हमें दिखाई दी है, यहाँ पे फ्लेम जो है वो क्या फ्लेम यहाँ पे ग्लास ट्यूब में जाएगी वो फ्लेम, ओके, एंड यहाँ पे हमें फ्यूम्स क्रिएट होगा कि नहीं वहाँ पे, वो हमें देखना है, ओके. जो फ्यूम्स क्रिएट होगी तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लेम्स कैसी है और कैसी नहीं है, ओके. तो यहाँ पे आपको कैंडल ब्लो करने के बाद ये वन ग्लास slab is kept over onto the candle flame, and then after you will see that the black colored is formed onto the glass plate, okay. So when the candle flame is steady, introduce a clean glass plate or slide into the luminous zone of the flame. It means what? हाँ, हमने जो एक्टिविटी की ना, मैंने बताई वही है कि ग्लास प्लेट को आपको फ्लेम में रखनी है, और देन आफ्टर यू हैव टू से होल्ड इट देयर विथ अ पेयर ऑफ टंग्स फॉर अबाउट 10 seconds, देन रिमूव इट एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? यहाँ पे जो एक्टिविटी है फिगर 6.12 में बताया गया है वही है. अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग is formed on the glass plate or slide. It indicates that the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. जो luminous zone है, luminous zone means what? कि ये जो है ना, ये जो flame है ना, उसको luminous zone कहते हैं यहाँ पे, ओके. तो ये जो luminous zone है वहाँ पे आप जो ग्लास स्लैब को रखोगे तो वहाँ पे आपको कार्बन मिलेगा, और वो जो ब्लैक कलर का पार्टिकल्स जो मिले, कार्बन्स जो मिले, वो जो कार्बन्स है वो वहाँ पे बर्न्ट नहीं होंगे, ओके, इसीलिए हमें वहाँ पे कार्बन्स मिले हैं. सो होल्ड थिन लॉन्ग कॉपर वायर just inside the non-luminous zone of flame for about 30 seconds. देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ल्यूमिनस जोन में रखवाना है, तो ये जो है वो ल्यूमिनस जोन है, दिस इज ल्यूमिनस जोन, एंड दिस इज नॉन ल्यूमिनस जोन, ओके. तो नॉन ल्यूमिनस जोन में आपको एक कॉपर वायर रखना है एंड 30 सेकेंड के लिए. नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट
Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? वहाँ पे रेड हो जाएगा, जो कॉपर वायर आपने रखा वहाँ पे, वो वहाँ पे रेड हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वहाँ पे टेम्परेचर हाई है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। एक्चुअली नॉन ल्यूमिनस जो पार्ट है वो हॉटेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। जस्ट सी ओवर हियर, दैट इज डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। मैं आपको ऐसा भी 2 मार्क्स में पूछ सकती हूँ कि ड्रॉ अ डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल, ओके, indicate them. Then you have to indicate them that wax candle, this is wax candle, this is least hot। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये least hot है। दिस इज मॉडरेट हॉट, बहुत कम हॉट है, ओके, मॉडरेट हॉट। एंड दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट। दिस इज आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन, दैट इज ब्लू कलर होगा। ये जो है ना, ये वाला वो ब्लू कलर हो मिलेगा, ओके। ये जो है वो मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबस्शन, दैट इज कॉल्ड येलो कलर्ड। एंड innermost zone of unburnt wax vapors, that is black color, ओके। तो ये जो है डिफरेंट जोन्स है कैंडल फ्लेम्स के। गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम ओनली? देखो, गोल्ड एंड सिल्वर को जो हमें करना हो उसको, तो उसकी जो ऊपर वाली जो हॉटेस्ट फ्लेम जो है उसमें ही हमने क्यों की? वाई? गोल्डस्मिथ ब्लोइंग थ्रू अ मेटालिक पाइप, तो वहाँ पे ही क्यों ब्लो करते हैं ये? वो आपको देखना है, सोचना है और फिर मुझे आंसर देना है, ओके। What is a fuel? Now next topic is what is a fuel? Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. Fuels तो आपको पता है क्या है कि sources of heat energy for domestic and industrial purposes, okay, that is petrol, wood, charcoal, kerosene, etc. So a good fuel is one of which is readily available. It is a cheap, it burns easily in air at a moderate rate, it produces a large amount of heat, it does not leave behind any undesirable substances. तो गुड फ्यूल वो क्या होते हैं कि बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं, चीप होते हैं, वो इजीली बर्न हो जाते हैं मॉडरेट रेट में, ओके। उसकी जो वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, and it does not leave behind any undesirable substances. So there is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. You should look for a fuel which fulfills most of the requirements for particular use. वो वहाँ पे कोई आइडियल फ्यूल ऐसा कोई है ही नहीं, ओके, कि हम उसको एज अ आइडियल फ्यूल कह सके, ऐसा कोई फ्यूल नहीं है, जस्ट वो हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, some fuels are cheaper than others, some fuels are not. Like me, I can say that the kerosene is cheaper than petrol, but petrol is nowadays so much high costly, कॉस्ट बहुत बढ़ गई है पेट्रोल की, डीजल की, ओके। तो ये जो सारे फ्यूल्स जो है वो बहुत कॉस्टली भी है और कुछ ऐसे है कि वो चीपर है। So make a list of fuels familiar to you and group them as a solid, liquid and gases in a table 6.3। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि सॉलिड गैसेस एंड सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसेस फ्यूल्स कौन से हैं। नेचुरल गैस है, उसमें क्या आता है? CNG, LPG, ओके, केरोसिन ऑयल, देन पेट्रोल एंड डीजल,
ओके। कोल में आता है, कोल आता है, चारकोल आता है, कोल चार आता है। ओके। Now fuel efficiency. What is fuel efficiency? And then after we will see the burning of fuels leads to harmful products. And then after we will finish our chapter over here. Let's start. Suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as a fuel. Fuel efficiency कितनी है? Which fuel would you prefer? काउडंग दिया जाएगा, कोल दिया जाएगा, एलपीजी दिया जाएगा, आप कौन सा प्रिपेयर करेंगे और गिव योर रीजन। मे यू टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। डू दिस थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। देखो, मुझे काउडंग दिया गया, कोल दिया गया, एलपीजी गैस दिया गया, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे और कौन सा जो है फ्यूल वो आपको बहुत अच्छी तरह दैट गिव्स यू द वेरी नाइस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। 1 किलोग्राम फ्यूल हम बर्न करने के बाद हमें जो हीट एनर्जी मिली उसको क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। एंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट ऑफ कॉल्ड किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू इज इसका यूनिट क्या है? किलो जूल पर किलोग्राम। सो कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन बिलो और हियर। तो सबसे ज़्यादा हमें कौन सी कैलोरीफिक वैल्यू मिली? हाइड्रोजन की। देखो, हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा मिली हमें। ओके, फिर बायोगैस की नहीं, फिर बायोगैस की नहीं आती, फिर किसकी आती है? यस, एलपीजी गैस की आती है। ओके, देन आफ्टर मीथेन एंड सीएनजी आता है। ओके, एंड देन आफ्टर डीजल, केरोसिन, पेट्रोल आता है। एंड देन आफ्टर कोल नहीं, बायोगैस आता है। ओके, एंड देन आफ्टर कोल आएगा, एंड देन आफ्टर वुड आएगा, देन आफ्टर काउडंग आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कैलोरीफिक वैल्यू दिए गए हैं और कौन सा फ्यूल हमें कौन सी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा देता है, हीट एनर्जी ज़्यादा देता है, वो बताया गया है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जितना हम फ्यूल्स को बर्न करेंगे उतना ही वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हार्मफुल है। द इंक्रीजिंग ऑफ फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases like asthma. देखो, जितना भी हम पेट्रोल जो है, कोल है, वुड है, जितना भी बर्न करोगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो पार्टिकल्स है वहाँ पे बर्न नहीं होंगे, डिसॉल्व भी नहीं होंगे, इसीलिए उससे हमें भी नुकसान होता है। तो वो कैसे होता है कि अस्थमा जैसे डिसीजेस भी क्रिएट हो सकते हैं जितना हम ज़्यादा पेट्रोल या फिर कोल, वुड जितना हम बर्न करेंगे उतना ही। ओके, इनकम्प्लीट कंबस्शन of these fuels gives carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in a closed room, and the carbon monoxide gas produced can kill persons sleeping in that room. देखो, जो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गया और उसको बंद किया रूम में और उनकी जो विंडोज है ओपन नहीं की, तो वो जो मैन जो है वो वहाँ पे सो रहा है वो तो किल भी हो सकता है। उतना डेंजरस है ये पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो दैट्स वाई वी आर एडवाइज्ड नेवर टू स्लीप इन अ रूम विथ बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। इसीलिए हमारे घर में भी जो धुआं होता है ना, तो वहाँ पे हम सोते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गया, इट इज़ पॉइजनस गैस। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट स्लीपिंग देयर। गॉट इट? यस। Combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. देखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी हार्मफुल है
जितना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा उतना ही ओजोन लेयर जो है वो वहाँ पे होल्स होने शुरू हो जाएंगे। ओके, एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी हार्मफुल है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स which leads to a rise in the sea level, cause floods in the coastal areas. Low-lying coastal areas may even be permanently submerged under water. ओके, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है एटमोसफियर के टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही सी लेवल जो है वो राइज होगा, और सी लेवल जितना राइज होगा जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे फ्लडिंग जो नेचुरल प्रोसेस है वहाँ पे शुरू हो जाएगी इसीलिए। ओके, सो that's why we also have to careful for it. Burning of coal and diesel releases sulfur dioxide also. देखो सल्फर डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल एंड कोल का जितना बर्न होगा उतना सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे क्रिएट होगा। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, वो बहुत सफोकेटिव गैस होता है। मोर ओवर पेट्रोल इंजिन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। देखो सल्फर ऑक्साइड्स जो है नाइट्रोजन है वो जो रेन वाटर आता है ना उसमें डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दैट्स वाई सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन किसको बोलते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर मिक्सड विद द वाटर एंड मेक अ एसिड फॉर्म, एंड देन आफ्टर इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ओके, it is very harmful for crops, buildings and soil. You have already learned into the 7 the use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG. That is because CNG produces the harmful products in very small amounts. So CNG is a cleaner fuel. So पेट्रोल की जगह पे हम CNG क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि CNG जो है वो वहाँ पे हार्मफुल प्रोडक्ट्स वहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, गॉट इट। ये जो लास्ट टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप 3 to 4 बार प्लीज रीड दिस टॉपिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी कैन save our environments. Okay, so I am going to finish your chapter over here, that is combustion and flame, and then after in the next day we will see the chapter 7. I hope that you all understand that what am I going to say, and if you have any query then please note down in your notebook, and I hope that you all are watching the videos. Okay, bye everyone, take care everyone, have a nice day, bye.